السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد بٹ اور یہ آپ ڈیجیٹل کے لیے میری ایک ویڈیو ہے۔ کافی عرصے کے بعد اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے اس پہ فوری اس طرح کی ویڈیو بنائی جائے کہ جس میں آپ کے لیے وہ انفارمیشن وہ معلومات لائی جائے جو عام طور پر آپ کے سامنے نہیں آتی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک سانحہ ہوا، راولپنڈی میں مسعود نامی ایک شخص تھے، انہوں نے خودکشی کر لی۔ آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ہر جگہ ان کا چرچا تھا اس خبر کا۔ خبر کیا تھی؟ وہ خبر اہم کیوں تھی؟ وہ خبر اہم اس لیے تھی کہ مسعود نامی جو شخص تھے، یہ صاحب تھے، انہوں نے سود سے تنگ آ کر، قرض سے تنگ آ کر خودکشی کی۔ خودکشی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر اتنا سود چڑھ چکا تھا مختصر عرصے میں جو ان سے چکایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سود انہوں نے ایک قرض یا لون ایپ کے ذریعے حاصل کیا تھا فون پہ۔ عام طور پہ یہ ایپس کس طرح لوگوں کو پھنساتی ہیں، کس طریقے سے لوگ ان کے شکنجے میں آتے ہیں، اور سادہ لو عوام جن کو رولز کا نہیں پتہ، لاس کا نہیں پتہ، اور وہ آسان اور فوری قرض کے چکر میں ان ایپس کے شکنجے میں آ جاتی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کیسے ہوتا ہے اس ویڈیو میں۔ پہلے مسعود کی کہانی مختصراً یہ ہے کہ ان پہ اتنا لون چڑھ گیا، اور قرض ایپ والے جس ایپ کے ذریعے انہوں نے قرض لیا ہوا تھا، وہ ان کے پیچھے اس طرح پڑے کہ ان کے خاندان کو بلیک میل کیا، ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں تک کو فون کر کے گالیاں دی گئی۔ ان کے بھانجے تھے، ان کی فون کال بھی ریکارڈ ہوئی ہے ہمارے پاس، اور میڈیا میں بھی آئی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے وہ لوگ بات کرتے ہیں ریکوری آفیسرز، نہایت ہی شرمناک اور نہایت ہی دھمکی آمیز ان کا رویہ ہوتا ہے۔ خواتین کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، آپ کے بارے میں ایسی شرمناک باتیں آپ کے رشتہ داروں کو کی جاتی ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے قرض واپس نہ کیا اور وہ سود جو اس کے اوپر دنوں کے حساب سے چڑھ رہا ہوتا ہے وہ واپس نہ کیا، تو آپ کو بدنام کر دیا جائے گا۔ آپ کی ایسی تصاویر بنا کے ایڈٹ کر کے آپ کے رشتہ داروں میں پھیلا دی جائیں گی جن کو دیکھ کر مطلب آپ بالکل بھی شرم کے مارے آپ زمین میں گڑ جائیں گے۔ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ کہنے کو تو انہوں نے، مسعود نے چند ہزار روپے کا قرض لیا تھا، لیکن وہ کئی لاکھ روپے تک پھیل گیا تھا قرض، اور وہ اس مد میں، قرض کی مد میں کئی لاکھ روپے ادا بھی کر چکے تھے ان قرض لون ایپ والوں کو۔ لیکن پھر بھی سود اتنا تھا اور سود کا بوجھ اتنا تھا، اور وہ بوجھ اتنا بڑھتا گیا کہ جو ان کی انمول زندگی تھی وہ انہوں نے ختم کرنا مناسب سمجھا، بجائے اس کے کہ وہ سود چکا سکیں یا اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی کا، بچوں کا سامنا کر سکیں۔ بدنامی کے ڈر سے، بدنامی کے خوف سے، عزت جانے کے خوف سے، جس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا، اس کے انڈر آ کے مسعود نے خودکشی کرنے کا سوچا اور خودکشی کا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی آسانی سے ہمارے عوام پاکستان کے اس قرض ایپ کے چکر میں یا آسان لون کے چکر میں کس طریقے سے پھنس رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ پاکستان میں جس حساب سے مہنگائی ہے، جس حساب سے پاکستان میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کا قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر وہ برسر روزگار بھی ہیں، اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، میڈیکل ہے، بچے ہیں، بیمار ہیں، اگر ان کا علاج کروانا ہے، گھر میں کئی طرح کی ضرورتیں ہیں، وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے حکومتی سطح پر، سرکاری سطح پر یا بینکنگ سطح پر کہ لوگوں کو فوری طور پر بلا سود، اگر نہیں تو کم از کم سود پر ہی آسان قرض مل جائے تاکہ وہ اپنی فوری ضرورت پوری کر سکیں۔ اس وجہ سے لوگ اس طرح کی ایپس پر اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے ایپس کے شکنجے میں آتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ چند دیر کے لیے اگر آپ اپنا فیس بک آن کریں اور یا اس پہ براؤز کر رہے ہو، اپنے فیس بک پہ، یوٹیوب پر ہو، آپ کے سامنے ایک اشتہار آتا ہے کہ بلا سود قرضہ حاصل کریں چند گھنٹوں میں، جس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور عام طور پر آج کل جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے غریب عوام ہیں، ان کو عام طور پر ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی؟ فوری اور آسان قرضہ حاصل کرنے کے چکر میں آپ یا جو بھی قرض چاہ رہا ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، وہ اس لون ایپ پر اپلائی کر دیتا ہے، بٹن دبا دیتا ہے، ایپ انسٹال کر لیتا ہے فون پر۔ جیسے ہی یہ لون ایپ آپ کے فون میں انسٹال ہوتی ہے، آپ کو اس پہ رجسٹر ہونے کا کہا جاتا ہے۔ آپ اس پہ رجسٹر ہوتے ہیں، آپ سے آپ کا شناختی کارڈ نمبر مانگا جاتا ہے، بلکہ اس کی تصویر مانگی جاتی ہے۔ آپ اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، شناختی کارڈ کی اگلی اور پچھلی سائڈ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان کو دی جائے، ساتھ ہی آپ کی کرنٹ فوٹو کہا جاتا ہے، آپ اپنی ایک سیلفی بنا کے، فوٹو بنا کے ان کو بھیجی جائے تاکہ وہ میچ کریں۔ معاملہ یہیں پر نہیں رکتا، وہ جو ایپ ہوتی ہے، وہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے قرض کا، اس میں ایک بڑا ہی خطرناک آپشن ہوتا ہے جس پر آپ
क्लिक करके यस करते आप उसको इजाज़त देते हैं कि वो आपके फ़ोन का तमाम डेटा हासिल कर ले। जी हाँ, आपका तमाम डेटा जिसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो फ़ोन में है वो उनके पास चले जाते हैं। आपकी तस्वीर, आपकी पर्सनल तस्वीर, आपके रिश्तेदारों की, आपकी बीवी की, आपके बच्चों की, आपकी बहनों की, भाई की, आपकी गर्ज ऐसी तस्वीर जो आप किसी और गैर मर्द के सामने या किसी और गैरों के सामने उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो इस लोन कंपनी के पास चली जाती हैं। इसके साथ साथ आपके तमाम रिश्तेदार, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास चली जाती है और वो ऐप के ज़रिए बआसानी हो जाता है। ये ऐप सिर्फ आपको लोन ही फराहम नहीं कर रही होती, आपका डेटा भी चुरा रही होती है, जिसका आपको पहले से नहीं बताया होता, ना ही इजाज़त ली जाती है। वो डेटा बाद में आपके ख़िलाफ़ काम आता है। जब आपको लोन दे दिया जाता है, अमूमन तौर पे ये होता है कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है जी आपको 90 दिन के लिए लोन दिया जा रहा है नहायत ही थोड़ी रकम के सूद पर। अमूमन कहा जाता है जनाब यानी 10,000 रुपये में और 90 दिन के अंदर आप 13,000 रुपये वापस करते हैं, यानी 10,000 के ऊपर 3,000 रुपये लोन। लोग समझते हैं कि ये एक सस्ता सौदा है और 3 महीने में 90 दिन में आप 10,000 रुपये वापस कर रहे हैं, 3,000 रुपये आप अपनी सहूलत के दे रहे हैं सूद के। तो हालांकि ये गुनाह है, हराम है, सबको पता है, लेकिन फिर भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम इसी सूद पर चल रहा है, चाहे वो आपकी कन्वेंशनल बैंकिंग हो या इस्लामिक बैंकिंग हो। इसके बारे में बड़े शकूक व शुबहात हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको सूद से बचाए। खैर, इस सस्ते सूद के चक्कर में, कम सूद के चक्कर में आप वो लोन अप्लाई कर लेते हैं 90 दिन के का समझ के। आपके बैंक अकाउंट में या इजी पैसा या जैश कैश जो भी है उस आप रकम भी आ जाती है, वो 10,000 रुपये आ जाती है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पूरी रकम नहीं मिलती, उसमें से कमीशन या एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे कुछ रकम काट भी जाती है। यानी फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रुपये दिए गए हैं तो आपके पास 8,000 रुपये तक आ जाते हैं, 8,500 1,500 रुपये वो मज़ीद काट देते हैं, लेकिन आपके खाते में 10,000 रुपये चढ़ गए होते हैं। 8,500 नहीं, वो पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में चढ़ गए होते हैं, जिस पर सूद बन रहा होता है। उस सूद बनने के और वो सूद उसी वक्त से शुरू हो जाता है जैसे आपको पैसे मिलते हैं, हर दिन के हिसाब से। अमूमन तौर पर ये शिकायत आई और तकरीबन सब ने ही ये शिकायत की, जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, जो मैंने केसेस सुने, कि आपको 7 दिन के अंदर, बल्कि कई दफ़ा 5 दिन के अंदर रिकवरी ऑफिसर्स की कॉल आनी शुरू हो जाती है कि भाई आपने कर्ज दिया हुआ है, वो आप पैसे वापस करें। आप उनसे बहस करते हैं कि नहीं जनाब ये तो 90 दिन के लिए है, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं नहीं आपने तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर यस बोला है, उससे एग्री किया है। उन टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि हम 5 दिन बाद 7 दिन बाद आपसे ये कर्ज वापस लेंगे, आप कर्ज वापस करें। अगर आप ये कर्ज वापस नहीं कर सकते तो आप एक गारंटी मनी जमा करा दें, और वो गारंटी मनी तकरीबन जितनी भी वो अमाउंट बोलते हैं मेरे ख्याल में 10 से 15% होता है। अच्छा, ये गारंटी मनी जो है अगर आपने 10,000 का सूद लिया है तो आपसे 1,500 या ये 2,000 रुपये आपसे ले लेते हैं गारंटी मनी के तौर पर। लेकिन ये गारंटी मनी भी आपके कर्ज की अदायगी में शामिल नहीं होती, ये अलग से एडमिनिस्ट्रेशन फीस होती है। आपका कर्ज और सूद वहीं खड़ा होता है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, ये बड़ी जालसाजी है, ये बड़ा ही मुजरमाना फील है। आपको 6 दिन की एक्सटेंशन यानी 1 हफ्ते की मज़ीद की एक्सटेंशन मिल जाती है। आप वो एक्सटेंशन लेके आराम से बैठ जाते हैं और ये समझते हैं कि आपको मज़ीद 6 दिन की या 7 दिन की मोहलत मिल गई, आप अपनी जान छुड़ा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या 3 दिन बाद सब केसेस में ऐसा हुआ है, फिर से कॉल आती है, फिर से आपको धमकी दी जाती है कि जनाब यानी आप पे कर्ज है, आपका सूद रोज़ के हिसाब से चढ़ रहा है, ये जो आपने 13,000 रुपये देने, ये अब 13,000 रुपये नहीं रहे, ये 26,000 रुपये लग गए, बल्कि इस पे आपको पेनल्टी भी लग गई है। जी हाँ, जुर्माना भी अलग से लग जाता है। सूद अलग, कर्ज तो वहीं खड़ा है, सूद उस पर है जो रोज़ के हिसाब से चढ़ रहा है, आप पर जुर्माना भी डाल दिया गया है। जनाब किसी पर 15,000 रुपये डाला गया, किसी पे 20,000 डाला, 25,000। ये जुर्माना और सूद बढ़ के 2 हफ्ते के अंदर लाखों में पहुंच जाता है। जी हाँ, आपने जो 10,000 रुपये लिए होते हैं वो अब 10,000 रुपये नहीं रहे, या वो 13,000 रुपये नहीं रहे जो आपने ये सोचा था कि 90 दिन के अंदर आप वापस कर देंगे, वो अब 10 या 13,000 रुपये नहीं रहे, वो बढ़ के लाखों के रुपए हो चुके हैं। जिस बंदे ने 10,000 रुपये लिए हैं वो कितना मजबूर होगा कि उसने सिर्फ 10,000 रुपये कर्ज लिया अपनी ज़रूरत के लिए, तो उसके पास लाखों रुपए कहाँ से आएंगे? वो तो पहले ही 10,000 रुपये नहीं उतार पा रहा। तो यही कर्ज अदा करते करते, यही सूद उतारते हमारे कई पाकिस्तानी भाई, कई ऐसे लोग, मजबूर लोग, हमारे गरीब आवाम मौत की आगोश में चले जाते हैं, वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है।
यहाँ पर आपको बताते चले कि दो तरह की ऐप्स हैं। एक तो वो रजिस्टर्ड ऐप्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान से बाकायदा रजिस्टर्ड हैं और उनके पीछे उनके अंडर राइटर्स जो हैं वो बैंक्स हैं। फाइनेंशियल दुनिया से थोड़ी बहुत वाकफियत रखने वाले समझ जाएंगे कि अंडर राइटर का क्या मतलब है। उनके पीछे जो भी बैंक्स हैं वो उनको पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक सहूलत फराहम कर रहे हैं कर्ज देने की और कर्ज जो है वसूल करने की। अमूमन ऐसी जो ऐप्स हैं वो चंद एक ऐप्स हैं, तकरीबन 12 ऐप्स हैं मेरे ख्याल में जो अभी सामने आई है कि जो कानूनी हैं उनकी तरफ से इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जाते क्योंकि ये गैर कानूनी हथकंडे हैं। और लेकिन इसके अलावा जो ऐप्स हैं जिन बहुत सारी ऐप्स हैं, ऐसी ऐप्स हैं जो गैर कानूनी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है, कई सौ में, बल्कि कुछ कहीं से तो हमें पता लगा कि वो हज़ारों में। ये ऐप्स ज़्यादातर पाकिस्तान में अनरजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड के अलावा ये ऐप्स पाकिस्तान से बाहर से भी ऑपरेट हो रही हैं। जी हाँ, इसमें चाइनीज़ कंपनीज इन्वॉल्व है, ऐसी कंपनीज, और बाय द वे चाइनीज़ कंपनीज मैंने आपको बताया यहाँ पर इन्वॉल्व है। चाइना में ये ऐप्स बैन है। चाइना में कोई ऑनलाइन ऐप आप कानूनी तौर पर कोई भी ऑनलाइन ऐप कानूनी तौर पर कर्ज फराहम नहीं कर सकती, वहाँ पर हुकूमत की जहाँ सख्ती है। ये ऐप्स चाइना में बैन होने के बाद पाकिस्तान में इनका इन्फ्लक्स हुआ। इन ऐप्स ने पाकिस्तान का रुख किया, बांग्लादेश का रुख किया, इस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का रुख किया जहाँ पर लोगों को फौरी पैसे की ज़रूरत होती है और वो उनके चुंगल में आराम से आते हैं। यहाँ पर उन्होंने लोकल लोगों को हायर किया, लोकल फर्म्स हायर की जो इनके लिए थर्ड पार्टी के तौर पर रिकवरी ऑफिसेज चला रही हैं। ऐसे कई सेंटर्स हैं जहाँ पर लोगों को भर्ती किया जाता है, उनको डेटा की लिस्ट दी जाती है, फ़ोन नंबर्स की लिस्ट जाती है, लोगों की मालूमात जो आम तौर पर किसी भी इदारे के पास नहीं होती, खाली गवर्नमेंट इदारे के पास होती हैं, वो दी जाती हैं और लोगों के नंबर, और उनसे कहा जाता है कि इनसे रिकवरी करें। रोज़ाना 100 से 150 का पर बंदे का टारगेट होता है कि लोगों को या जिन लोगों ने कर्ज देना है उन लोगों को कॉल करके कर्ज वापसी का कहा जाए और किसी भी सूरत धोस धमकी हर तरीके से गालम गलोच करके उनसे पैसे वापस लिए जाएं। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको अपना पैसा फौरी चाहिए होता है। इसके अलावा वो कर्ज चढ़ाती रहती हैं, सूद बढ़ाती रहती हैं ताकि उनके मामला चलते रहें और वो कभी भी ये कर्ज लेने वाला उनके चुंगल से निकल ना सके, या अगर निकले भी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट देके निकले। इन ऐप्स के खिलाफ, इन गैर कानूनी ऐप्स के खिलाफ FI हरकत में तो आ चुकी है, लेकिन देखना ये है कि कहाँ से क्योंकि FI का कार्यकाल तो सिर्फ पाकिस्तान तक है, क्या वो पाकिस्तान में इनको बैन कर पाएंगे? स्टेट बैंक को देखना होगा, हुकूमत को देखना होगा कि इन ऐप्स से कैसे निपटा जाए। ये तो हुकूमती जिम्मेदारी है, लेकिन एक हमारी बतौर अवाम भी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि हम जानते हैं कि हम कोई भी अगर हमें नीड है, हमें कोई भी मसला है, पैसों की ज़रूरत है या फौरी तौर पर हमें कर्ज चाहिए, तो खुदारा इन ऐप्स के चक्कर में ना आए। अगर आप वाकई किसी ऐप को परखना चाहते हैं, पहले उनकी जाके टर्म्स एंड कंडीशन पूरी तरीके से पढ़ें, देखें उनके पीछे कोई बैंक है, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, हुकूमती है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप वो नंबर से जाके उनको देख सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या आया ये इन पे एतबार किया जाए। दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं, अपने फ़ोन में इस किस्म का डेटा भी ना रखें, इस किस्म के तस्वीर भी ना रखें जो बाद में अगर लीक हो जाए किसी ऐप के ज़रिए तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ज़रा सी गलती आपको, ज़रा सी पैसे की लालच, फौरी कर्ज का हसूल आपको जो है किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। और जैसा कि आपने देखा, एक नहीं कई ऐसे केसेस आए। मसूद का तो हालिया केस है, लेकिन माजी में भी हम देख चुके हैं और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके केस रिपोर्ट भी नहीं हुए। तो आज का हमारा पैगाम यही था। इस स्टोरी पर हम मज़ीद काम कर रहे हैं। हमने कुछ एजेंट से रब्ता भी किया है, वो किस तरीके से लोगों को कॉल करके उनसे बात करते हैं, उनसे धमकाते हैं, उनके टारगेट होते हैं, उनको किस तरह हायर किया जाता है इन एजेंट्स को। हमारी कोशिश है कि ये आपके लिए अगली वीडियो में लाएंगे। हम कॉन्टेक्ट कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।